Good morning, children. Now, the next session of the geography class, and the topic is land, soil, and water resource. And we have studied about the resources, the natural resource, and the types of resource. We have already studied in the first session, and in this second session, we will study about the land resource, the most important resource among the natural and human resource, that is land resource. And why this land resource is very important? It is the most important resource. Why? Because all human beings live on the land. Where we live? In water? No. Water is very important resource, because we drink, we do many works, but we live on earth. If we don't have the base, just imagine, where do we live, where we survive? So all human being live on, हम लोग उस पर रहते ही हैं, इसीलिए रहने के लिए ज़मीन चाहिए. यदि ज़मीन कम होगी तो हम लोग रहेंगे कहाँ? So land resource is important because all human being live on land. The second importance of land, that human being obtain most of the needs from it. Means every need, most of the needs we get from the earth, like food, animal, agriculture, house, है ना? For example, what we get from the land, just imagine, constructing building, we construct building on it, we make roads, railways on it, we do cultivation there, agricultural work also, and from that we get food. We rearing animal on the lands. Even to burn or bury the dead bodies we need lands. यहाँ तक कि हम यदि मर जाए तो मरने के बाद हमको जलाया या गाड़ा भी जाता है तो ज़मीन ही चाहिए उसके लिए. तो in this way we can understand how much important the land resource is. Land surface is now, here we come, the forms of the land. Land surface is not uniform. ये एक तरह से सब जगह एक समान नहीं है. ये सब जगह एक समान नहीं है. It varies in size and shape. ये कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है. They also changes with the passes of time. अब देखो, साइज़ कहीं पे क्या कहते हैं, शेप में ये डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कहीं माउंटेन हो सकता है, कहीं प्लेन्स, कहीं डेजर्ट हो सकता है. कहीं पे प्लेन्स ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे माउंटेन कम हो सकते हैं, कहीं पे डेजर्ट ज़्यादा होते हैं, कहीं डेजर्ट एरिया कम होते हैं. ठीक है ना, साइज़ के हिसाब से. एंड दे चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. व्हाट दे मीन्स द land form, the land, the lithosphere, the upper layer of the earth changes. कैसे चेंज करता है? जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समय के इंटरनल एंड आउटर रीजन्स अफेक्ट्स द लैंड फॉर्म्स. जैसे इंटरनल रीजन्स हो सकते हैं, मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स लाइक वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक अकर्स and landform changes, and the other outer reasons are the weathering, erosion and all. Okay, later we will study about the how passage of time changes the landforms. These landforms are mountains, plains, plateaus, deserts. Now sudden changes takes place due to earthquake and volcanoes, and these are the internal reason by which the landforms get the sudden change. And landform gradually changes due to continuous process by wind and water. पानी और हवा के द्वारा जब वेदरिंग, कटाव होता रहता है मिट्टी का, रॉक्स का, है ना, तो
उससे नए लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे कि मान लो माउंटेन जो है, ग्लेशियर माउंटेन्स को काटता है, और उसके बाद फोर्स में जो ये मान लो ये माउंटेन है ना, ये ग्लेशियर है, ये क्या करता है रॉक्स को काटता है। यहाँ से फिर रॉक्स को काटे, ये स्टोन्स में कन्वर्ट हुआ, इसको पानी के फोर्स से ये कटता है और फिर ये प्लेन्स में आता है। यहाँ मान लो गड्ढा है तो क्या करेगा, ये इसको भर देगा और ये क्या करेगा, ये प्लेन हो गया और पानी यहाँ से बहना शुरू हो गया। फिर भरते भरते ये क्या किया, जितना गड्ढा है इसको प्लेन्स करता चला गया। और फिर मान लो कहीं पे ये पहाड़ है तो ये पानी का फोर्स क्या करेगा, कुछ दिन भरते भरते इसको काट देगा, काट के इसको प्लेन्स करते हुए फिर ये प्लेन हो गया और ये फिर ये बराबर होके जहाँ कहीं गड्ढा होगा उसको भर देगा। तो ये जो क्या कहते हैं, डेप्थ एंड अपलिफ्टमेंट बोथ were filled and cut by the force of the water, and this is called the weathering and erosion process and by the deposition and transportation of the soils। जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट करके, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्रिंग वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। यहाँ से ये मिट्टी को काट के यहाँ लाया, गड्ढे को भर दिया, यहाँ पे कोई ऊंचा स्थान था उसको काट दिया, वहाँ से मिट्टी को लेके गया और फिर खाली जगह में भर दिया, और इस तरह से ये इस तरह से हो जाएगा, ना कहीं गड्ढा ना कहीं चट्टान, बल्कि ये पूरा प्लेन्स हो गया, एंड दैट इज़ कॉल्ड द प्लेन। अब ये जो ये सब था वो क्या हो गया, प्लेन्स का रूप ले लिया, नया फॉर्म ले लिया। एंड दिस अकर ग्रेजुअली, ये अचानक से नहीं होता, इसमें बहुत समय लगता है इतना को करने में। जैसे कि यहाँ से मिट्टी लाया, इसमें छोड़ दिया, दैट इज़ कॉल्ड द डिपोजिशन। एंड यहाँ इसको काटा, यहाँ जब भरने लगा तो यहाँ से मिट्टी को फिर कैरी करते हुए, इसको काटते हुए ये आगे लेते जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ रहा है कि इसको वेदरिंग इरोजन बोले, इसको डिपोजिशन बोले, इसको ट्रांसपोर्टेशन बोले। वेदरिंग इरोजन अगेन, एंड देन कैरी these soils from one place to another is called the transportation by the rivers। ठीक है, विंड के द्वारा भी बहुत हवा चलती है, तो ये ज़्यादातर विंड में जो लैंडफॉर्म चेंजेस होता है वो डेजर्ट एरिया में होता है। अरावली रीजन का जो डेड माउंटेन है वो जो है क्या है, वो धीरे धीरे अरावली माउंटेन छोटा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, वहाँ पे क्योंकि डेजर्ट एरिया एकदम पूरी तरह से बैरन है तो हवा बड़ी तेज़ बहती है, और क्योंकि अरावली का जो रॉक्स है, दोज रॉक्स आर डेड रॉक्स। डेड रॉक्स जो है वो भुरभुरे टाइप के होते हैं। आप बहुत तरह का पत्थर देखे होंगे जो एकदम कड़ा होता है, जिसको आप तोड़ना चाहें तो तोड़ने में काफ़ी कठिनाई होगी, और कुछ तरह के पत्थर होते हैं जो कि भुरभुरे टाइप के होते हैं, उसको आप एक बार पटकिएगा तो पूरा चकनाचूर हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ स्टोन्स आर डेड रॉक्स, और वही अरावली का है। तो वहाँ जब हवा चलती है तो वो आराम से जो है उसको काटते हुए, इसलिए धीरे धीरे अरावली माउंटेन जो है छोटा होता जा रहा है, और उसी का जो बालू है ज़्यादातर वो डेजर्ट में गया हुआ है। तो इस तरह से ग्रेजुअल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द लैंड फॉर्म्स ऑफ द लैंड्स। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस gradual change by wind and water. Now the different landforms we will study one by one. The first landform is mountain. Why mountains are important for us? It is important because it is the large source of rainfall and river। जहाँ पे पहाड़ होते हैं वे बादलों को रोकने का क्षमता रखते हैं, जिसके कारण पानी बरसता है। और दूसरा जो हमारे यहाँ का है कि साउथ से, दिस इज़ द साउथ पोर्शन ऑफ आवर इंडिया, एंड यहाँ से जो है हवा जो है वो आती है, मानसून इधर से आता है और उसको हिमालय क्या करता है, रोकता है, जिसके कारण ये बादल रुकते हैं और यहाँ पूरे देश में बारिश कराते हैं, और साथ में फॉरेस्ट का भी अपना रोल है। एंड देन तो आप समझ गए कि रेनफॉल का कैसे रीज़न है, ये बादलों को रोकते हैं और वहाँ पे बारिश कराते हैं। दूसरा हो गया रिवर्स। ये जो ग्लेशियर, जो ऑल टाइम जो ग्लेशियर स्नो है और ग्लेशियर्स हैं हमारे ये का, तो वो नीचे मूव करते हैं। व्हाट इज़ ग्लेशियर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियर्स? ग्लेशियर्स आर द मूविंग आइज, वी कैन से ग्लेशियर द रिवर ऑफ आइज। ये सरकते रहते हैं धीरे धीरे, वो जमे हुए नहीं रहते। ग्लेशियर मान लो
एक माउंटेन का जो मान लो ये माउंटेन है, तो एक एरिया जहाँ ये मूव नहीं करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन यहाँ आते आते टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने लगता है। एक हाइट, जैसे जैसे हम ज़मीन के नज़दीक आते रहते हैं तो हाइट टेम्परेचर कम होने लगता है, तो ये स्नो क्या होता है, मेल्ट करने लगता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि पानी में बदल जाए, इसलिए ये सरकना शुरू करता है। ठीक है, तो इस एरिया में ये सरकना शुरू करता है और ये सरकता चला जाता है ऐसे ऐसे करके, एंड दिस इज़ कॉल्ड द रिवर ऑफ आइस। और ये जब सरकता है तो सरकते सरकते जब नीचे आता है, जब मेल्टिंग पॉइंट पे आता है, तो यहाँ जैसे मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी में बूंद बूंद करके पानी जगह जगह से गिरता है और यहीं से रिवर का सोर्सेस बनता है। ठीक है, तो एक हाइट के बाद से क्या होता है, ये ग्लेशियर्स जो है हमारे पेरेनियल रिवर के सोर्स बन जाते हैं। पेरेनियल रिवर यानी सालों भर इसमें से हम लोगों को पानी मिलता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियाँ जो हैं, गंडक, ये नदियों में पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता, ये सालों भर पानी देते हैं, क्योंकि इनको पानी कहाँ से मिलता है, इन्हीं ग्लेशियर्स से मिलता है। एंड दीज ग्लेशियर्स लाइज ऑन माउंटेन्स। यदि माउंटेन नहीं होते तो ग्लेशियर नहीं होते, ग्लेशियर नहीं होते तो हमारे पेरेनियल रिवर्स नहीं होते। सो दैट दीज माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सेकेंड, इट हैज़ स्नो एंड ग्लेशियर्स, तो इसका कनेक्शन तो इससे है ही, स्नो और ग्लेशियर है, इसीलिए ये जो है एक जो है आपको स्टोरेज हाउस ऑफ वाटर कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, सेविंग्स हो सकता है, इसको हम आपका फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जिससे कि जैसे कुछ लोग अपना पैसा फिक्स करके रखते हैं ना कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं हो, उसी तरह से स्नो है हमारा बैंक, जो पानी का बैंक है कह सकते हैं कि ये स्नो जो है वो हमारे ग्लेशियर और स्नो सालों भर हमको पानी देते रहते हैं। और ये इतने हाइट पे होने के कारण स्नो को अपने ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि हाइट में स्नो बनता रहता है। ठीक है, यदि हाइट नहीं रहता तो स्नो भी नहीं रहता। इट हैज़ हर्ब्स नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चरल बट रिच सोर्स ऑफ एलुवियल सॉइल। देखो ये इसमें जब हम इस एरिया में आते हैं, फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स, जब हम फुटहिल्स में आते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स में आते हैं, तो वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेनियस फॉरेस्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ब्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड अबॉर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये सब इसमें है। जंगल है, वहाँ जंगल के लिए, जंगली जीव के लिए घर है, वाइल्ड लाइफ के लिए हर्ब्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड्स मिलते हैं। तो ये एक तरह से वो हो गया इसका बेनिफिट। चौथा बेनिफिट है नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे खेती तो नहीं की जा सकती है, लेकिन ये रिच सोर्स ऑफ एलुवियल सॉइल है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, इस जगह पे बताया था ना कि ये जो रॉक्स है वो वेदरिंग इरोजन के थ्रू पानी जो यहाँ से ग्लेशियर रिवर्स निकलते हैं वो इसको कैरी करते हुए यहाँ पे पूरा पसार देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये जो रॉक्स हैं, देखो सॉइल, एलुवियल सॉइल हर साल आता है बाढ़ के थ्रू या पानी के थ्रू या विंड के थ्रू। और ये हमारा जो पतला परत जो होता है, ज़मीन का पतला परत आप देखते होंगे बारिश के बाद जो बहुत उपजाऊ होता है वो हर साल मिलता है। यदि ये नहीं आए तो क्या होगा कि खेती करने से पौधा जो है उस ज़मीन का फर्टिलिटी को खींचता है, उपजाऊपन को खींचता है और वो अनाज में भर देता है, फिर ये बंजर हो जाती है। जब तक ये नया मिनरल युक्त एलुवियल सॉइल हर साल यहाँ पे नहीं मिलेगा तो ये मिट्टी जो है कुछ दिन में, कुछ सालों में बंजर हो जाएगी, लेकिन ये मिलता रहता है। अब ये एलुवियल सॉइल का सोर्स कैसे है? ये यहाँ तो कोई खेती नहीं हो रही है, माउंटेन में तो कोई खेती नहीं हो रही है, तो उसका रॉक्स में पूरा मिनरल जो है वो वैसा का वैसा रहता है। और जब ये पाउडर बन के वेदरिंग इरोजन के थ्रू जब प्लेन्स में आता है, ठीक है, और प्लेन्स में ही खेती होती है, तो जब प्लेन्स में आता है तो वो पूरे मिनरल को यहाँ बिछा देता है एक लेयर के थ्रू, और ये ज़मीन में मिक्स होके इसकी फर्टिलिटी को, ज़मीन की फर्टिलिटी को कायम रखता है। इट मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड बिकॉज रॉक्स आर अनयूज्ड ऑन द माउंटेन एंड दे आर फुल ऑफ रिच इन मिनरल्स एंड फर्टिलिटी। और ये जब वेदरिंग के थ्रू सॉइल बन के यहाँ आते हैं तो वो पूरा का पूरा मेंटेन कर देते हैं। नेक्स्ट, सीनिक ब्यूटी।
सीनिक ब्यूटी, ये पहाड़ी क्षेत्र जो है देखने में बहुत सुंदर होते हैं. मेनी dunes एंड वैलीज आर देयर एंड दीज आर द कोल्ड प्लेस, so that in each summer most of us prefer mountainous places, valleys or the dunes for summer vacation. We prefer to go there. Why? Because they have scenic beauty, they are cold places, okay, and many flowers and scenic beauty we can see there. Mountains are horticulture and hydropower are successfully practiced in mountain. अब यहाँ पे खेती तो नहीं हो सकती है, लेकिन हॉर्टिकल्चर यहाँ पे होता है, यानी कि बहुत सारी फूलों की खेती की जाती है हॉर्टिकल्चर में, डिफरेंट काइंड्स के, क्योंकि ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है और छोटे छोटे एरिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आप लगा के आप बिजनेस कर सकते हैं. एंड द हाइड्रो पावर के लिए माउंटेनियस प्लेस को क्यों प्रीफर किया जाता है? क्योंकि फोर्स में गिरते हैं पानी यहाँ पे. माउंटेनियस एरिया में पानी में फोर्स होता है क्योंकि ऊपर से नीचे गिरते हैं, ठीक है, और ये फोर्सफुली गिरते हैं. तो जब फोर्स में पानी गिरता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना टरबाइन लगा के बहुत ही इजी होता है. इसीलिए माउंटेनियस प्लेसेस में जो है हाइड्रो पावर का ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है, एक शॉर्ट कमिंग्स है कि फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक रोड्स एंड कम्युनिकेशन, बिकॉज इसका पहाड़ को काट के रोड वगैरह बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट का भी चांसेस बनता है. नेक्स्ट इज़ प्लेटोज. प्लेटोज आर द टेबल्ड लैंड, नॉट हाई एज द माउंटेन्स एंड इट डजेंट हैव पीक्स लाइक माउंटेन्स. इसका ऐसा पीक नहीं होगा, बल्कि इट इज़ टेबल्ड लैंड. ये पीक नहीं होगा, ये इस तरह का तीन कोना टाइप का कुछ नहीं होगा इसमें, ये टेबल्ड लैंड होंगे. ठीक है, तो व्हाट आर द advantages or the characteristics of the plateaus? Plateaus are rich in lava, which is very fertile, and black soil is found here. लावा से ब्लैक सॉइल क्रिएट होता है, जो वेदरिंग इरोजन होगा लावा से, और जो लावा रॉक से जो सॉइल तैयार होगा वो ब्लैक सॉइल होगा. एंड इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर द कॉटन प्रोडक्शन. कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही कारगर होते हैं. रिच इन मिनरल्स, जितने भी प्लेटोज़ हैं, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, डेक्कन प्लेटोज़ है, महाराष्ट्र, हैदराबाद, वहाँ पे मिनरल्स बहुत पाया जाता है. मिनरल्स मीन्स कोल, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ओके, एंड दीज आर बॉक्साइड, लेमन, सॉरी, हाँ, सिलिकॉन, इस तरह के सारी मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं. और ज़्यादातर यहाँ पे क्या मिलते हैं? माइंस मिलते हैं, माइनिंग का काम ज़्यादा होता है. द रिवर्स फाउंड इन प्लेटोज हैज़ बीन हार्नेस्ड फॉर द प्रोडक्शन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. और प्लेटोज़ में जो रिवर्स पाए जाते हैं, प्लेटोज़ के रिवर जो होते हैं पेरेनियल नहीं होते हैं, ये सीजनल होते हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर से नहीं निकलते होते हैं. तो गर्मी के दिनों में ये रेन वाटर फेड होते हैं. पानी ज़्यादा बारिश होगी तो भर जाएंगे, और बारिश कम होगी तो एकदम पतला, बहुत कम होता है पानी हो जाता है. तो ऐसे में बट दीज रिवर्स आर हार्नेस्ड फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत यूज़ किया जाता है यहाँ के रिवर्स को. खेती के लिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि पानी सीजनल आता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसको यूज़ करते हैं. नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ लैंड इज़ प्लेन्स. एंड प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल सॉइल. जैसे कि मैंने बताया था कि माउंटेन से जो सॉइल वेदरिंग इरोजन होके आता है, दैट इज़ कॉल्ड द एलुवियल सॉइल. बहुत अच्छा सॉइल माना जाता है. दीज आर द मोस्ट फर्टाइल काइंड ऑफ सॉइल.
because it is rich in minerals, or brought by the rivers in plains, so these regions are very fertile. Example, and the major plains of the world are Amazon basin and the Indo-Gangetic plains. We live in Bihar and UP, Uttar Pradesh and Punjab are lies under the Indo-Gangetic plains. यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड मिलता है, एंड अमेरिका में जो है अमेज़न बेसिन है, यहाँ पर भी आपको प्लेन्स मिलता है, और इसमें माउंटेन्स के थ्रू बहुत सारे वेदरिंग इरोजन करके क्या होता है सॉइल्स लाए जाते हैं, और दीज सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल एंड दीज सॉइल्स आर कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल. अब प्लेन्स में क्या क्या होता है, प्लेन्स आर डेंस पॉपुलेटेड. डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे बहुत घनी आबादी पाई जाती है. और घनी आबादी पाई क्यों नहीं जाएगी, सबसे ज़्यादा बिहार में यूपी में लोग क्यों हैं, इसका वजह है ड्यू टू ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. यहाँ पे पानी जो है वो बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ रिवर्स है, मेजर रिवर्स एंड पेरेनियल रिवर्स आर फाउंड इन प्लेन्स ओनली. सारे पेरेनियल रिवर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंडक, ये सभी बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं जिसमें सालों भर पानी रहता है, वो इन्हीं प्लेन्स से होकर गुजरती हैं. और इसीलिए दीज आर वेरी इजी टू दे आर वेरी यूज़फुल फॉर द इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर. ये पानी बहुत शुद्ध भी और बहुत अच्छे पानी होते हैं, फुल ऑफ मिनरल्स, रिच इन मिनरल होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी को बहता हुआ पानी भी है, इसलिए पी भी सकते हैं, और हम अपना दैनिक जीवन के भी काम लाते हैं. और इरिगेशन के लिए बहुत सारे कैनाल्स जो होते हैं, कैनाल्स जिसको हम नहर बोलते हैं, वो बनते हैं, है ना. आराम से चैनल्स बना दिया जाता है, एक नदी से डिफरेंट चैनल्स निकाल के खेत तक पहुंचा दिया जाता है. और यही गंडक है, गंगा है, चैनल्स बन गया, और जो गंगा ढो के ला रही है एलुवियल सॉइल, बहुत फर्टाइल सॉइल है एलुवियल सॉइल, वो चैनल के थ्रू और नहर के थ्रू वो मिट्टी कहाँ आ रही है, खेतों तक आ रही है. और वो पूरा जो हिमालयन माउंटेन से जो रिच रॉक्स आ रहे थे, जो एलुवियल सॉइल आ रही थी, वो सभी खेतों में आ जाती है, और सारे खेतों को क्या करती है, वो फर्टाइल बना देती है. एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक और कंस्ट्रक्ट ट्रांसपोर्ट रोड्स, है ना. ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लेन्स है, तो यहाँ पे प्लेन्स में रोड, रेलवे, ये सब बनाना बहुत आसान होता है. वाटर वेज बनाना बहुत आसान है, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं. बड़ी बड़ी नदियों में नेविगेशन आसान होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग छोटे जहाज़ों का प्रयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत सूटेबल है प्लेन्स. एग्रीकल्चर के लिए तो लैंड, वाटर, सब चीज़ का फैसिलिटी प्लेन्स में मिल जाता है. यहाँ पे चीप लेबर मिल जाता है. चीप मतलब सस्ते लेबर क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमें खोजने के लिए, अपने घरों में ही लोग मिल जाते हैं. और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण लोग ज़्यादा दूर नहीं जाके अपने ही जगह पर सस्ते में काम करने को तैयार हो जाते हैं. जबकि दूसरे जगह जाएंगे तो उनको किराया वगैरह देना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा चार्ज करेंगे. लेकिन यहाँ अपना घर होता है और आसपास की जगह पर जाके काम करने के लिए उनको ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, जिससे कि हमें चीप लेबर मिल जाते हैं, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड है. रॉ मटेरियल्स, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की खेती करके हम रॉ मटेरियल, जैसे ईख निकाल लिए तो आपको चीनी का मिल आसपास में ही बैठा दिया तो आराम से हो गया. उसके बाद हम चीनी मिल हो गया, आटा का मिल हो गया, है ना, तेल का मिल हो गया. इस तरह का बहुत सारे रॉ मटेरियल हम लोग उगा के और आसपास में ही फैक्ट्री लगा सकते हैं, जो इकोनॉमिकल होगा. तो रॉ मटेरियल्स भी आराम से मिल जाता है, तो लोग इंडस्ट्री भी यहीं पे बैठाना चाहते हैं. बिग कंज्यूमर मार्केट मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्शन भी यहीं पे हो रहा है और डेंसली पॉपुलेटेड और हाई पॉपुलेशन भी मिल रहा है. तो इनके ज़रूरतों के लिए कंज्यूमर के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता है. हमको उपभोक्ता यानी कि ख़रीदने वाले लोग जो बना रहे हैं वहाँ पे ख़रीदार भी बड़ी मात्रा में, क्योंकि बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन भी है. तो हमको कोई भी चीज़ जो हम प्रोडक्शन करें उसको बहुत दूर ले जाके बेचने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, बल्कि हमारे मार्केट यहीं पे
अपने ही जगह पर तैयार हो जाता है। तो प्लेन्स जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, चीप लेबर, रॉ मटेरियल, है ना, और उसके बाद बिग कंज्यूमर मार्केट मिल जाता है, और लाइवलीहुड के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि पीसी कल्चर है, हॉर्टिकल्चर जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो अपना गाय पाल लिया, बकरी पाल लिया, दूध का बिजनेस कर लिया, और छोटा मोटा मिल बैठा लिया, मिनी मिल बैठा लिया। इस तरह से करके क्या कर सकता है, वो बहुत सारा अपना लाइवलीहुड तैयार कर सकता है। तो इस तरह से आपका तीनों फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स जो है, मेजर लैंड फॉर्म्स, इसके बारे में आप लोग पढ़ लिए। अब जो है आपका आता है होमवर्क। आपका होमवर्क है ट्रू फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। एंड द लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसको आपको आंसर करना है, मस्ट राइट इट। इनटू हाउ मेनी फिजिकल यूनिट कैन यू डिवाइड इंडिया, डिस्क्राइब देम। ठीक है, इसका आंसर आप लिखिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।